Good evening, guys. Chalo. So, last part of the integration is creating the web services. So, last lecture I have told you one thing that what we have studied so far was like there are two systems. Okay, there are two systems. Let's consider the first one to be the Salesforce. The second one is a third-party system. Okay. So, what we were doing so far is like we were sending some requests to the third-party system, and that third-party system is actually sending some response. That means we were requesting third party system. Third party system was sending some response back to the Salesforce, right? Like there were two examples that we have taken for that. There were two examples, like Indian postal map was the first thing. So Indian postal map was the first thing where we were sending the pin code, and in response to that, the details of the pin code was sent. The third party system was sending us that particular details of the that particular pin code, right? Second, what we have taken what weather map API, right? Weather map API. So to this weather map API, again, what we have sent, we were sending the name of the city, and in response to that, it was sending us the weather conditions of that particular city. But in both of the cases, what we have done with these two examples, where like you were sending some request to third party system, that means your third party system was actually a provider. Your third party system was actually a provider. And in Salesforce, what you are doing, you are consuming the response. Okay. So you were a consumer. You were a consumer. So with these all two examples, what we have seen was like, how to send the request and how to get the response, how to consume the response. So on to this particular integration, we were what? We were actually consumer. We were actually consumer. Now, what we wanted to learn from this onward is like the direction is going to be get changed. Direction is going to be get changed. So what we are learning with right now is how to create the web services. So what is going to be happen in these cases will be, third party system will going to request the Salesforce. Any third party system will going to request the Salesforce, and Salesforce will become a provider in that case. How to write down that web services to become a provider so that we could provide a response, so that we could provide the response to any third party system. That means we are now going forward to become a provider, and third party system here will become the consumer. That is what we are learning right now. So for that we will going to write down something called as web services. For that we will going to learn something called as web services, how to write down the web services. Okay. So web service is what, like web service is actually that kind of business logic. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है. It is nothing just a custom business logic which can be accessible by the external system. So if someone tried to get some response from the Salesforce, so he will request something, he will request a web service. That web service will going to provide the response back to that third party system, right? That is what the logic what we are learning right now. So whenever we wanted that any Salesforce application should be accessed with any other application, any external system. So what we require in between, we obviously require out something called as web services, right? So web services majorly, there are only two types of service. This is not just with the Salesforce. In general, I'm telling you. In general, there are only two different types of web services. You are learning Salesforce, that's a different thing. But otherwise, if you go with the Java, if you go with any other good languages also, if there is a concept of integration over that, still there are only two different types of web service. So this is something which is globally defined. There are only two types of web services. The first one is REST, the second one is SOAP. Okay. So the REST actually is universally accepted. The REST actually is the universally accepted. So why so? Because REST make a use of your JSON formats. REST actually make the use of JSON format. Now in SOAP there are two different options. Either you can go with the JSONs, either you can go with the XML. But SOAP is actually outdated, I'm telling you.
sequentially oriented AP something application protocol, something like this. इसका full form जो है sequentially oriented application protocol ऐसा कुछ तो भी है. But this is something which is outdated. Nowadays, nobody for integration nobody uses SOAP. Actually, 99% of the web services make a use only and only with the REST APIs. 99% time, because see, in 99% of the cases there is only JSON format. You go with any sort of integration, whenever for exchanging the information, there is only one format, that is JSON. And REST API, representational state transfer, full form of REST is a representational state transfer. That is the API, that is the web service that is purely and purely built on the JSON formats. Right? That is the reason, that is the reason 99% of the integration, 99% of the web services only uses REST protocols. Okay? That is what the reason. So what we are learning REST-based web services. What we are learning REST-based web services. We are going to learn how we can write down the Apex REST. That means how can we create the Apex classes for the REST integration, representational state transfer integration. Right? Okay. See, so there are a few things that required you to understand at this moment. If you we have learned something called as object ID, right? Actually, in the REST, when we are learning REST APIs, there's a terminology called as resource name. When we are learning this, there's a terminology called as resource name. So the best example to learn a resource name मतलब क्या होता है? We have learned something called as object ID in the previous lecture. We have learned this. If you remember that lecture, I told you that every object in the Salesforce has been represented with a 3-digit number. Like for the count, it's 001. For contact, it's 003. For the opportunity, 006. Right. So if I access that object, if I access that object in the Salesforce, right? If you remember one thing, that instead of the name, yeah, if I access account, for example, so in my URL, instead of the name account, what it appears 001. So that 001 actually represents the account, right? If we access the campaigns, so it appears to be 701 onto URL. So what is this number? In that case, we are calling this number as an object ID. But actually, there is one similar kind of terminology that we are learning, something called as resource name. See, whenever we design a class, web service class, whenever we design a web service class, so we should require to name that. And that name is going to appear at URL. That name is going to appear at URL. So that particular name is called as resource name. Now, I am not telling you about naming a class. For example, you even have created so many classes. For example, if I go with development this Apex class, okay, these many classes are what that we have created. Common helper, okay, database helper, DML utility class. Okay, let's example that there is a class called as DML utility class. Now we wanted to expose this class to the external system. Let's take this as an example. Okay, let's take this as an assumption. Okay, this class is an web service class. Let's make this as an assumption. Okay, this class is a web service class, and we wanted this class to be get exposed to the external third-party system. Okay, if third-party system requests something, this class is going to provide the response to that third-party system. Now this is a class which is acting as a web service class. Now let's take this as an assumption. So what is the name of the class? DML utility. But with this name DML utility, we don't want it that DML utility should appear over here. So what we are going to do is we are going to give this class one name. It could be anything. Like for example, data manipulation. Let's understand that I have given one name to it. How to give that name, we are going to learn. For this class, I have given a name called as data management. Okay. Just try to understand this concept. जैसे वो nickname होते हैं ना हर किसी के, तो मैंने क्या किया कि I have done one thing, I have given a nickname to this particular class, data management.
So what is going to be happen is like कि I am going to share this name to third party system. थर्ड पार्टी सिस्टम को ये वाला नाम दूंगा, डेटा मैनेजमेंट, कि माय वेब सर्विस नेम इज एक्चुअली डेटा मैनेजमेंट. So that data management is what it's a kind of nickname. It's a kind of resource name that you have given to that particular class. So this was a concept. This is what a concept that we are going to learn. So resource name is actually what whenever we create any web service, whenever we create any API, we actually require to give that as a name. And that name we are going to expose it to the third party system. Okay. थर्ड पार्टी सिस्टम को हम बोलेंगे कि इफ यू वांटेड टू एक्सेस दिस है ना, दिस इज द वेब, आई मीन दिस इज द एपीआई, आई मीन दिस इज द काइंड ऑफ नेम यू रिक्वायर टू गिव. तो दैट रिसोर्स नेम जैसे 001 रिप्रेजेंट्स द अकाउंट, तो इन द यूआरएल अकाउंट नजर नहीं आता है, क्या नजर आता है 001, 003 नजर आता है कॉन्टैक्ट के लिए. So in the same way, if somebody is actually accessing this class, so whatever the resource name that you have given to this particular class will going to be appear onto the URL instead of exposing the class name. अब यहाँ पर कैसा है कि it's all depends on you. Sometimes people even do one thing कि वो क्लास का जो नाम होता है ना उसी को रिसोर्स नेम करके दे देते हैं, बट आइडियली ऐसा करना नहीं चाहिए. We should never expose the actual name to the outer world. We should never expose the actual name. We should always create some other, we should always give some other name, and we should use some other name. जैसे आपका क्लास का नाम DML यूटिलिटी है, तो if you wanted to make this class as a web service class, तो इसका जो रिसोर्स नेम होगा उसको DML यूटिलिटी ना देते हुए कुछ और दिया करो. That is something which is recommended every time whenever you create a web service class. The resource name and the class name should be somehow different to each other. Why? Just to maintain the integrity and the security part. Just to maintain that integrity part. What we want? We wanted to make it sure that the external system, like any external third party system, should not receive the actual names of the class. That is what we will be creating one dummy name, not dummy. We will be creating one nickname for that particular class. For example, data management. Now this name, instead of giving data DML utility, I will give external party. I will give the name as data management to external third party system. So this data management, this resource name called as data management is actually representing this class. That is what we require to do over here. So web service जब भी हम बनाते हैं, so we always give the class as a name, and that name is called as resource name. That name is called as resource name. ठीक है, that was the first thing. चलो कुछ और चीजें हैं just as a prerequisite, before we start writing the web service class. कुछ चीजें हैं जो आपको समझानी है. इसमें सबसे पहला होता है आपका रिसोर्स नेम. So what that resource name is going to appear, that resource name is going to appear into URL. So that resource name we always keep it a different name. We always give it as a different name. हम हमेशा usually यही करते हैं. लेकिन अगर आप सेम नेम भी दोगे तो कोई रोकेगा नहीं आपको, ठीक है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए. उसके बाद में क्या होता है कि whenever we wanted to access the resources, right, we make a use of HTTP methods. HTTP methods जो होती हैं उसको हम use करते हैं. तो HTTP you already have used that class, right? Here just we require to understand कि अब इसमें कौन-कौन से protocols आते हैं. So whenever you are using HTTP protocols, because see, when we are accessing when we are exposing any web service, try to understand one thing. Even you have done the same thing. Okay? Like for Indian Postal Code API, when we were accessing this, so this is something called as URL. With this URL, what was the method? Get method. With this URL, right? With this URL, we were accessing this particular API. Now ये तो हो गया, चलो ये यहाँ पर ये बनाया हुआ था. Now we are providing we wanted to provide some API. हम भी ऐसा ही कुछ URL provide करेंगे. And with that URL, मान के चलो ये तो अब दूसरे का URL हो गया जिसके थ्रू हम इंडियन पोस्टल कोड की API को हिट करते थे. तो अभी तो वो एक अलग बात है. अभी now in the Salesforce we are going to create any such method. अभी हम लोग कुछ APIs बना रहे हैं. We are creating some sort of methods, right?
तो हमारा भी अपना एक यूआरएल क्रिएट होगा एंड दैट यूआरएल वी आर गोइंग टू शेयर इट, कि आपको अगर ये वेब सर्विस को एक्सेस करना है तो यू रिक्वायर टू गो विद दिस यूआरएल। बिल्कुल सेम वही बात है, जैसे कि आपने इंडियन पोस्टल कोड के लिए आपने इस यूआरएल को हिट किया था। ये यूआरएल हिट करने का मतलब होता है कि विद दिस यूआरएल आई वाज एक्सेसिंग द एपीआई। एक्चुअली यहाँ पर एक एपीआई बनाया हुआ है एंड टू एक्सेस दैट एपीआई वी वर यूजिंग दिस यूआरएल। Now this URL consists of something called as HTTPS or HTTP, Hypertext Transfer Protocol. तो अभी हम लोग we in at our side in the Salesforce, in the Salesforce we are actually creating this web service. हम भी अभी वेब सर्विस बनाने वाले हैं। दिस वेब सर्विस अगर ये मान के चलो कि कोई ये अब ऐसा ऐसा अज्यूम करके ये एक थर्ड पार्टी सिस्टम है विच वांटेड टू यूज दिस वेब सर्विस, तो ये कैसे यूज करेगा? विद सम यूआरएल हम इसको प्रोवाइड करेंगे, आप ये यूआरएल पे जाइए and with this URL you can access this web service. The same what you have done, आपने भी जब यूज किया इस पर्टिकुलर API को तो आपके पास में एक URL मौजूद था जिसको हम एंड पॉइंट URL बोलते हैं, ठीक है। और ये दोनों बार था लाइक वेब वेदर में आप में भी आपने एक URL हिट किया, तो अभी वो कैसा था कि यू वर एक्चुअली कंज्यूमर, बट अब आप प्रोवाइडर हो, आप अपनी कोई वेब सर्विस जो है दूसरे को एक्सपोज कर रहे हो और आप उसके लिए आपको भी URL लगेंगे। तो URL ऑलवेज हैव समथिंग कॉल्ड एज हाइपरटेक्स्ट transfer protocols, right? So we require to understand something called as one more thing is there. What does HTTP protocol actually means? So when we talk about HTTP have some of total 5 different types of protocol. The first one is GET. GET is used to retrieve the data. Okay, GET. I'm going to take. I have told you that I'll be going to take this ये जो methods है ना आपकी, जैसे यहाँ पे भी लिखा GET method. GET method is used to retrieve the data. When we hit this API, when we hit this URL is going to return something to me, right? To get the data, like I can say over here, to get the details of pin code, I'm using this particular URL. Okay, I'm using this particular URL. What is the method name? The method name is get in that case. Understand one thing. So now we are creating a web service class. We inside the Salesforce are creating a web service, right? This web service is going to be used by some other third-party system. So what are the different types of HTTP protocol? The first one is to get. Get is used to retrieve the records. Now, for example, actually I'm going to take examples on everything, so don't worry. I'm just introducing you to. For example, we created a web service. हमने एक ऐसी web service बनाई है कि when you hit this web service through some URL, when you hit the web service, ठीक है, inside the Salesforce we created a web service. That web service will going to return you the details of account record, details of any object contact, and it's going to return that, right? So what is the method name in that case? Get method. Because with this URL, when you are hitting this URL, you are getting something. This third party system is actually getting something, right? This third party system is getting something. So that kind of request is called as get. That kind of protocol is called as get, and that kind of request is called as HTTP get request. The second one is post. Post is used to insert something. Post is used to insert something. Now, for example, this is third party system, and this third party system is giving me one account record. This third party system is giving me one account record. There is a web service. Okay, there is a web service. There is a web service that I have written. This web service will capture this account record. Whatever this third party system is sending me one record, and it is actually stored in. It is actually storing it inside. It is actually storing it this inside account object. ठीक है. So what I could say over here is like account में जो record आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? Third party system से आ रहा है. Third party system is sending me one record. ठीक है. और I could take another example. मतलब अगर आपको ये tough लग रहा है तो I could see, I could take it in other way that एक third party system है that is sending me the records of candidate. That is sending me the records of candidate. एक third party system में that is sending me the records of candidate. ठीक है. Salesforce में एक ऑब्जेक्ट बना रखा है हमने कैंडिडेट नाम का. Salesforce में हमने एक ऑब्जेक्ट बना रखा है कैंडिडेट का. ठीक है. तो ये कैंडिडेट ऑब्जेक्ट में ये वाला जो रिकॉर्ड है, फॉर एग्जांपल C1 नाम का एक कैंडिडेट रिकॉर्ड यहाँ से निकला. तो दिस C1 we wanted it to be get stored.
वी वांटेड C1 टू गेट इंसर्टेड इनसाइड दिस ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए आपने एक वेब सर्विस बना रखी है। हेलो। हाँ, यस। सो लेट्स टेक दिस एज एन एग्जांपल कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है सेल्स फोर्स में, एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास जिसका नाम है कैंडिडेट। वी आर हैविंग वन ऑब्जेक्ट कॉल्ड एज कैंडिडेट। नाउ एक थर्ड पार्टी सिस्टम है जो हमको कैंडिडेट के रिकॉर्ड भेज रहा है, ठीक है, कैंडिडेट के रिकॉर्ड भेज रहा है। तो सेल्स फोर्स में थर्ड पार्टी सिस्टम से लेने के लिए और ऑब्जेक्ट में स्टोर, ऑब्जेक्ट में क्या करना है आपको, इंसर्ट करना है। वी वांटेड टू इंसर्ट दिस रिकॉर्ड, उसके लिए आपको एक वेब सर्विस लिखना पड़ेगा, ठीक है, उसके लिए आपको एक वेब सर्विस लिखना पड़ेगा। और ये बहुत ही कॉमन रहता है, दिस इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल। इसके लिए जो मेथड लगती है आपको वो होती है पोस्ट मेथड। इसके लिए जो मेथड, जो प्रोटोकॉल लगता है वो है, प्रोटोकॉल का नाम है पोस्ट। और जो मेथड है इसकी, वो मेथड कहलाती है एचटीटीपी पोस्ट। ये बहुत ही कॉमन है, सबसे कॉमन यही एग्जाम्पल। इसमें हमारी कोई ऑब्जेक्ट रहती है, ठीक है, पोस्ट और गेट, ये सबसे ज्यादा कॉमन। पोस्ट और गेट, ये सबसे ज्यादा कॉमन। पोस्ट में क्या होता है कि थर्ड पार्टी से हम कोई रिसीव करते हैं जो हम ऑब्जेक्ट में स्टोर करते हैं। गेट में क्या होता है, गेट में आपको यहाँ से कोई पैरामीटर नहीं मिलता है सच, गेट में कोई पैरामीटर नहीं मिलते हैं। थर्ड पार्टी सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता है आपको, थर्ड पार्टी सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता है कि मुझे कैंडिडेट का रिकॉर्ड चाहिए। वो रिक्वेस्ट को हैंडल करना और फिर कैंडिडेट का रिकॉर्ड यहाँ से उसको थर्ड पार्टी को देना, ये होता है गेट, ये होता है गेट। तो अगर रिट्रीव करना है, रिकॉर्ड रिट्रीव करना है तो गेट है, और अगर इंसर्ट करना है तो फिर पोस्ट है, ठीक है। तो कौन कौन सी मेथड्स हैं प्रोटोकॉल्स की, सबसे पहली गेट मेथड है जो कि रिकॉर्ड रिट्रीव करने के लिए, रिकॉर्ड डिमांड करने के लिए, ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट में, सेल्सफोर्स के किसी भी ऑब्जेक्ट में नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो उसकी जो प्रोटोकॉल है वो है पोस्ट। एक एग्जिस्टिंग, ये नया हो गया, अभी किसी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को अपडेट करना है, जैसे कैंडिडेट C1 की डिटेल अपडेट करना है, तो उसके लिए जो मेथड है उसका नाम है पुट। और पैच मतलब अपसर्ट, पैच मतलब इंसर्ट प्लस अपडेट, पैच मतलब इंसर्ट प्लस अपडेट, जिसको हम अपसर्ट ऑपरेशन बोलते हैं। तो अपसर्ट मेथड परफॉर्म करना है तो उसके लिए पैच मेथड, और डिलीट करना है तो उसके लिए फिर डिलीट मेथड। तो ये सारे क्या है, दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस। ये एचटीटीपी के डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स है। ये इतने सारे अलग अलग तरह के ऑपरेशंस जो है वो एचटीटीपी आपको अलाउ करता है। अब उसके लिए जो मेथड यूज होती है, उसके लिए जो मेथड यूज होती है वेब सर्विसेज बनाते हुए, ठीक है, तो वो मेथड कौन कौन सी है। ये सबसे पहले तो आपको जो है कि जो भी क्लास आप बना रहे हो, फॉर एग्जांपल इफ यू आर क्रिएटिंग दिस क्लास, आपने एक क्लास बनाई है, इस क्लास को, फॉर एग्जांपल दिस इज योर क्लास एंड यू वांटेड दिस क्लास टू बिकम API, application program interface, you wanted this class to become a web service, you wanted this class to become a web service, ठीक है। तो उस क्लास को आपको डिफाइन करना पड़ता है कीवर्ड @REST resource। देखो ये बिल्कुल वैसा है, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे तुमको याद होगा कि अ, जब हमने फॉर एग्जांपल हमने जब ये पढ़ा था टेस्ट करना, मतलब टेस्ट क्लासेस लिखना, तो याद होगा। अगर नहीं भी याद है तो आज रिवाइज करो। तो किसी क्लास को टेस्ट क्लास बनाने के लिए, किसी क्लास को टेस्ट क्लास बनाने के लिए आप क्या किया करते थे, @test, ये एनोटेशन यूज करते थे इन द बिगनिंग ऑफ द प्रोग्राम इटसेल्फ। जब आपका प्रोग्राम शुरू होता है, जब आपका प्रोग्राम शुरू होता है उसके बिगनिंग में ही, उसके बिगनिंग में ही, जहां आपका प्रोग्राम शुरू होता है उसके बिगनिंग में ही आप क्या लिखते थे, @test लिखते थे। तो @test करने का मतलब क्या होता है कि द फॉलोइंग क्लास इज अ टेस्ट क्लास, the following class becomes a test class, right? ये हम किया करते थे उसको, that is what we do over that time, @test, right? हाँ, absolutely right, Jyotsna, that was the same thing I was telling। अब ये एक हो गई बात। एक एक और एग्जांपल अगर मैं देना चाहूंगा, उसमें एनोटेशन तो यूज नहीं होता है, बट अगर जैसे कोई क्लास होती थी, उसको आपको बैच प्रोग्राम बनाना होता था, तो आप वहां लिखते थे इम्प्लीमेंट्स, इम्प्लीमेंट्स डेटाबेस डॉट बाचेबल, है ना, इम्प्लीमेंट्स डेटाबेस डॉट बाचेबल।
तो वो जो पर्टिकुलर क्लास थी वो आपकी बैच क्लास बन जाती थी, राइट। अब देखो कैसा है, अपन एक क्लास बनाते हैं, क्लास इज अ कस्टम बिजनेस लॉजिक फर्स्ट ऑफ ऑल। अब उस क्लास को अगर मुझे टेस्ट क्लास बनाना है तो मैं एट द रेट टेस्ट लिखता हूँ। उस क्लास को अगर मुझे टेस्ट क्लास बनाना है तो मैं एट द रेट टेस्ट लिखता हूँ। और बिल्कुल उसी तरह से अगर मुझे उस क्लास को एपीआई बनाना है, उस क्लास को एक वेब सर्विस बनाना है, तब मुझे लिखना पड़ता है एट द रेट रेस्ट रिसोर्स। यहाँ पे मैं लिखूंगा इन द बिगिनिंग ऑफ दैट एट द रेट रेस्ट रिसोर्स। ठीक, ये जो एक क्लास जो मैंने बनाई है, पब्लिक क्लास और जो भी लिखा है, treat this class as a restful resource. Treat this class as a resource. Resource of what? Resource of rest. Resource of rest. तो इसके अंदर फिर जो मेथड्स आती हैं, इसके अंदर फिर जो मेथड्स आती है ना, अब जैसे आपने उसको, अब आपने इसको वेब सर्विस तो बना दिया, वेब सर्विस बना दिया है तो एचटीटीपी प्रोटोकॉल्स लागू हो जाते हैं। ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं। इनके लिए जो मेथड है, अगर आपको गेट, आपको ऐसा कोड लिखना है जो गेट वाली फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करे, तो उसके लिए फिर जो मेथड है वो है एट द रेट एच टी टी पी गेस्ट एनोटेशन। पोस्ट के लिए एट द रेट एच टी टी पी पोस्ट, एच टी टी पी पुट, पैच, डिलीट, ये सब चीजें हैं बेसिकली। ठीक है, और ये यूज करना सीख जाता है अपना, ऐसा कुछ नहीं। ये फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये सारे मेथड्स हैं, ये सारे एनोटेशंस हैं, ये सारे एनोटेशंस हैं, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, या आपको अगर गेट, आपको ऐसी वेब सर्विस लिखनी जो कि डेटा प्रोवाइड करती है, तो आप एक तो रेस्ट रिसोर्स लिखोगे और जो मेथड बनाओगे उस मेथड का नाम लिखोगे आप गेट मेथड, राइट, गेट मेथड, ऐसा है। तो ये है बेसिकली, और ये सीख जाते हैं अपन, डोंट वरी, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, तो रेस्ट रिसोर्स क्या करता है? रेस्ट रिसोर्स इज यूज टू एक्सपोज अ क्लास। ये बताता है कि ये जो पर्टिकुलर क्लास है, ये एक्चुअली एक सीधी सादी क्लास नहीं है। ये जो क्लास है ये बेसिकली एक वेब सर्विस क्लास है, ये एक तरह का रिसोर्स है। ये ऐसा रिसोर्स है दैट इज गोइंग टू बी एक्सपोज बाय द थर्ड पार्टी सिस्टम। ठीक है, ऐसा है। तो ये हो गया आपके रेस्ट रिसोर्स। उसके बाद में अब इसको कैसे लिखते हैं कि ऑलवेज वेब सर्विस क्लास, जितने भी वेब सर्विसेज क्लासेस होती हैं वो हमेशा ग्लोबल होनी चाहिए। बट ये तो, ये बहुत ही कॉमन बात है मेरे ख्याल, ये तो आप समझ ही गए होंगे। जैसे आपकी बैच क्लास भी ग्लोबल होती है ना। ऐसा कोई भी चीज जो अपने को एक्सपोज करना है तो वो ग्लोबल होती है। तो अगर मैं एक क्लास बनाई मैंने, फॉर एग्जांपल ये एक मैंने क्लास बनाई है। ठीक है, एक एग्जांपल है कि ये क्लास बनाई है मैंने, ध्यान से देखो इस चीज को, एक ही एग्जांपल में समझ लो। ये क्लास बनाई है अपन ने, ऐसा मान के चलो। अब ये जो क्लास है, इस क्लास को एपीआई बनाना है। वी वांटेड दिस क्लास टू बिकम एपीआई, ये एपीआई बनना चाहिए, ताकि कल चल के कोई बाहर वाला थर्ड पार्टी सिस्टम अगर कोई मतलब ये वो क्लास है जो रिक्वेस्ट को हैंडल करे और रिस्पांस को प्रोवाइड करे। मतलब एक थर्ड पार्टी सिस्टम है, उससे आने वाली रिक्वेस्ट को ये हैंडल करे और अकॉर्डिंग टू रिक्वेस्ट ये रिस्पांस देना चाहिए। तो उसके लिए मैंने इसको वेब सर्विस बनाया। दिस इज माई वेब सर्विस क्लास। ठीक है, तो अभी जो वेब सर्विस क्लास होती है, सबसे पहले तो उसका एक्सेस स्पेसिफायर ग्लोबल होना चाहिए। पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड तो होता ही नहीं क्लास का, तो पब्लिक और प्राइवेट नहीं रह सकता। प्राइवेट होता है आपकी टेस्ट क्लासेस, पब्लिक जनरल होता है, ये ग्लोबल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्लास को कौन एक्सेस कर रहा है? कोई तो भी थर्ड पार्टी सिस्टम एक्सेस कर रहा है। तो थर्ड पार्टी सिस्टम वुड एबल टू एक्सेस दिस क्लास, इसीलिए ये क्लास जो है ना ग्लोबल होनी चाहिए। ये पहली चीज है। दूसरा, दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, ये एपीआई तभी कहलाएगी, ये वेब सर्विस तभी कहलाएगी जब आप उसको एचटीटीपी रिसोर्स के साथ डिक्लेयर करोगे, एट द रेट एचटीटीपी रिसोर्स। और ब्रैकेट में देना पड़ता है आपको यूआरएल में रिसोर्स का नेम। रिसोर्स का नेम जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि हम किसी भी क्लास को डायरेक्टली एक्सपोज नहीं करते हैं, हम एक क्या देते हैं उसको, एक रिसोर्स नेम देते हैं। मतलब हम एक रिसोर्स नेम देते हैं, वो क्या रहता है, उसका निक नेम रहता है। वो उसका निक नेम रहता है जिससे कि वो क्लास, वो निक नेम थर्ड पार्टी सिस्टम को दिया जाता है। तो जैसे आपने एक क्लास बनाई, ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, जैसे आपने एक क्लास बनाई, यू क्रिएटेड अ क्लास, ठीक है, विद ग्लोबल एक्सेस स्पेसिफायर। अब इस क्लास को एक नाम दोगे आप, रिसोर्स नेम। तो वो रिसोर्स नेम देने का तरीका ऐसा होता है, देखो ये फॉर्मेट को ध्यान से देखो, यही फॉर्मेट हर बार यूज करना है। सबसे पहले एट द रेट रेस्ट रिसोर्स एनोटेशन यूज करेंगे, एट द रेट रेस्ट रिसोर्स। तो एट द रेट रेस्ट रिसोर्स ये बताता है कि ये जो क्लास है दैट्स एन एपीआई क्लास, ये एक वेब सर्विस क्लास। ठीक है, जैसे अगर ये एट द रेट टेस्ट लिख दूं तो ये बन जाएगी टेस्ट क्लास। टेस्ट क्लास जो होता है वो प्राइवेट हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है। अब ये इसको मुझे एपीआई बनाना है, इसको मुझे वेब सर्विस बनाना है, उसके लिए एक क्लास है कि ये ग्लोबली होगी। जैसे आपकी बैच प्रोग्रामिंग कोई ग्लोबली होता है, और इसको एपीआई बनाने के लिए, इसको वेब सर्विस बनाने के लिए, यू रिक्वायर टू राइट डाउन इट एट द रेट रेस्ट रिसोर्स।
ठीक है। अब एट द रेट रेस्ट रिसोर्स के बाद ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट, उसके अंदर एक वर्ड लिखना है आपको यूआरएल मैपिंग। यूआरएल मैपिंग इक्वल्स टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में दो रिसोर्स नेम। तो इस क्लास को क्या नाम देना चाहते हो? जैसे मैं इस क्लास को नाम देना चाहता हूँ डेटा मैनेजर। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में मैं लूंगा डेटा मैनेजर, उसके पहले एक स्लैश लगाऊंगा, ठीक है। इसके बाद में एक स्लैश लगाऊंगा, ठीक है। इसके बाद में एक स्लैश लगाऊंगा और यहाँ पे एस्ट्रिक, ठीक है। इसका मतलब इसके पहले कुछ भी रह चलता है, इसके बाद में कुछ भी रह चलता है। तो रिसोर्स नेम जो डमी नेम है, जो निक नेम है, वो आप देते हो एक कीवर्ड के साथ जिसका नाम है यूआरएल मैपिंग। यूआरएल मैपिंग इक्वल्स टू दिस रिसोर्स नेम, ठीक है। लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू शो यू सम एग्जांपल्स, उसके बाद में फिर मैं आगे रियल टाइम एग्जांपल्स देखेंगे। कि सारा इंटीग्रेशन किया था मैंने ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। ये एक्चुअल प्रोग्रामिंग है। एक्चुअल प्रोग्रामिंग में कमेंट्स लिखना जरूरी होता है, ठीक है। तो जो कुछ भी किया था, हु वाज द ऑथर, व्हाट वाज द डिस्क्रिप्शन, एंड पॉइंट यूआरएल क्या था, मतलब मैंने एक क्लास बनाया, एक वेब सर्विस बनाया, मैंने बनाया। अभी दिव्या उसको कैसे एक्सेस कर सकती है? दिव्या एक थर्ड पार्टी है मेरे लिए, मैं सेल्स फोर्स हूँ। तो मैं दिव्या को एक ये दूंगा, एक यूआरएल दूंगा, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपने यहाँ पर से ये यूआरएल, इस वेबसाइट ने आपको ये यूआरएल दिया कि अगर आप हमारी वेब सर्विस, हमारी सुविधाएं, इफ यू वांटेड टू यूज, तो यू रिक्वायर समथिंग, है ना, तो ये है वो यूआरएल। उसी तरह से मैंने एक वेब सर्विस बनाया जिसका नाम रखा मैनेज यूजर ऑपरेशन। मैंने उसका नाम दिया मैनेज यूजर ऑपरेशन नाम से मैंने एक वेब सर्विस बनाया। अब मैं दिव्या को कह रहा हूँ कि दिव्या आप इसको एक्सेस कर सकते हो। कैसे एक्सेस करेंगे? तो दिव्या डेफिनेटली रिक्वायर वन यूआरएल, है ना। तो दिव्या को एक यूआरएल देना पड़ेगा। तो दिव्या को हमने यूआरएल दिया, ये है वो यूआरएल। और इसके आखिरी में इफ यू नोटिस समथिंग, देयर इज अ नेम कॉल्ड एज मैनेज यूजर। अभी देखिए आप, मेरी क्लास का नाम क्या था? मैनेज यूजर ऑपरेशन ग्लोबल विथ शेयरिंग क्लास, ग्लोबल विथ शेयरिंग मैनेज यूजर ऑपरेशन। विथ शेयरिंग इसलिए, विदाउट शेयरिंग भी चलता है, बट विथ शेयरिंग इसलिए कि इसको अलग अलग यूजर्स चाहें तो एक्सेस कर सकते हैं, राइट। सो ग्लोबल विथ शेयरिंग अ क्लास। और अभी हम इसके बाद जितने भी एग्जांपल ले लेंगे, हम चाहें तो उसको विथ शेयरिंग रख सकते हैं। वी विल डू दिस कि अलग अलग यूजर्स भी चाहें तो उसको एक्सेस कर सकते हैं। जनरली वेब सर्विसेज को विथ शेयरिंग रखा जाता है। जो क्लास मैंने बनाई उसका नाम है मैनेज यूजर ऑपरेशन। मैनेज यूजर ऑपरेशन क्लास कैसी है? ग्लोबल। अब इस क्लास को यू एपीआई बनाने के लिए एक कीवर्ड यूज होता है एट द रेट रेस्ट रिसोर्स। तब जाके ये जो क्लास है ये बन जाती है एक एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, ये बनती है एक वेब सर्विस, ये बनती है एक वेब सर्विस। और इसके साथ मैंने एक कीवर्ड दिया ब्रैकेट में, यूआरएल मैपिंग इक्वल्स टू ओपनिंग, आपका ओपनिंग और क्लोजिंग सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, जैसा आप स्ट्रिंग देते हो, बैक स्लैश। इस पूरी क्लास, हालांकि इस क्लास का नाम था मैनेज यूजर ऑपरेशन, लेकिन जब दिव्या इसे एक्सेस करेंगे तो दिव्या के लिए इसका नाम मैनेज यूजर ऑपरेशन नहीं रहेगा। दिव्या को जो नाम पता है इसका, इसका निक नेम पता है। निक नेम क्या दिया मैंने? इसका मैनेज यूजर। इसीलिए मेरे एंड पॉइंट में, मेरे यूआरएल में उसका नाम क्या रहेगा? मैनेज यूजर। अब समझ में आया ये कंसेप्ट? ये ऐसा कंसेप्ट है कि ये जो हम देते हैं यूआरएल मैपिंग के अंदर, ये नाम कहाँ जाता है? यूआरएल में जाता है। तो यूआरएल में अपने एक्चुअल नेम क्लास के एक्सपोज नहीं होना चाहिए। जैसे आपका असली नाम जो है, आपका असली नाम है कासिम, ठीक है, बट आपको लोग सैम के नाम से जानते हैं, ठीक है, सारा शहर मुझे डॉन के नाम से जानता है। तो वो जो नाम है वो आना चाहिए एपीआई। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन, बिकॉज टू मेंटेन दैट यूजुअल इंटीग्रिटी, व्हाट वी ऑलवेज डू इज लाइक कि हम जब यूआरएल मैपिंग लिखते हैं तो उसके अंदर एक दूसरा नाम देते हैं रादर गिविंग दिस नेम। ये भी दिया तो चलेगा, लेकिन लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में कि क्या आप एक नया नाम तक नहीं सोच पाए? आपने एक्चुअल नेम क्लास का ही एक्सपोज कर दिया यूआरएल में। नाउ एवरीबडी नोस कि तुम्हारे डेटाबेस में जो क्लास है उसका नाम है, मतलब अगर तुमने दे दिया मैनेज यूजर ऑपरेशन तो उसका नाम है मैनेज यूजर ऑपरेशन। तो बेसिकली ऐसा नहीं करना है। तो एज अ बेस्ट प्रैक्टिस we should hide this name from third party, and so we always give a nickname. That nickname with URL mapping, with
they get nickname, and that nickname is going to be appeared onto your जो आप endpoint URL बना के दोगे उसमें आप, ठीक है। नाउ आई होप कि थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा आपको ये कंसेप्ट, राइट। चलिए आगे चलो। ओके, one second. One more thing, what I could show over here is like, now see, अलग अलग मेथड्स जो मैंने बनाई है, for example I created a method called as get manage user information. This is one of the method. तो इस मेथड को मैंने किया http post. http post इसलिए बनाया था मैंने इस मेथड को कि ये मेथड बिल्कुल ऐसे ही काम कर रही थी जो डायग्राम मैंने आपको बना के दिया था कि थर्ड पार्टी सिस्टम वाज सेंडिंग मी सम डिटेल, जैसे कैंडिडेट C1 का रिकॉर्ड थर्ड पार्टी सिस्टम से आ रहा था, थर्ड पार्टी सिस्टम वाज सेंडिंग मी दिस C1 रिकॉर्ड। C1 का ये रिकॉर्ड लेके मुझे सेल्सफोर्स के अंदर एक ऑब्जेक्ट है मेरा, फॉर एग्जांपल कैंडिडेट नाम का ऑब्जेक्ट, ठीक है। कैंडिडेट ऑब्जेक्ट में ये C1 मुझे इंसर्ट करना था, तो उसके लिए जो मैंने उसके लिए जो लॉजिक लिखा, उसके जो मेथड मैंने बनाई वो ये मेथड है, और ये मेथड जिस तरह का काम कर रही वो आता है http पोस्ट के अंदर। इसलिए इस मेथड को मैंने डिफाइन किया था @http पोस्ट के साथ। ये सब समझ जाओगे आप धीरे धीरे, सब धीरे धीरे समझ जाओगे। ठीक है, चलो। हाउ कैन वी एक्सेस, मैं दो चीजें सिखाने वाला हूँ आपको, वर्क बेंच और पोस्टमैन टूल। उसके अलावा बहुत सारी चीजें और भी आती हैं। आई होप सभी ने पोस्टमैन टूल, मैंने कहा था सबको कि इंस्टॉल करके रख लो, आप लोगों ने इंस्टॉल कर दिया होगा। नहीं किया है तो टुडे इज द लास्ट डे फॉर दैट, तो आज तो भी एटलीस्ट करके रख लो। यस, उसके बाद है आपकी http गेट मेथड। गेट मेथड होती है जो भी इंफॉर्मेशन अगर कोई थर्ड पार्टी डिमांड कर रहा है उसको पहुंचाने के लिए होती है, ठीक है। उसके बाद में हाँ, पहला एग्जांपल गेट का ही है, एक एक करके समझ लेंगे। तो व्हाट वी विल बी डूइंग इज लाइक, आज आज नहीं हो पाएगा, एक प्रोग्राम है तो आज नहीं, कल से स्टार्ट करता हूँ। व्हाट वी विल बी डूइंग इज लाइक मैं एक एक करके, अच्छा ये तो सभी में कॉमन रहेगा, जितनी भी वेब सर्विस लिखूंगा मैं सारी की सारी इसमें कॉमन रहेगा, रेस्ट रिसोर्स, बिकॉज ये क्लास लेवल पर डिफाइन किया जा रहा है, ये क्लास लेवल पर डिफाइन किया जा रहा है, ठीक है। जैसे मैं एक क्लास बना रहा हूँ तो वो क्लास लेवल पे मेरे को यहाँ जाके लिखना पड़ता है @REST रिसोर्स। उसके अंदर जितनी भी मेथड्स हैं तो बेस्ड ऑन की मेथड क्या कर रही है, अगर मेथड जो है डेटा प्रोवाइड कर रही है तो http गेट मेथड आता है, अगर मेथड जो है वो थर्ड पार्टी से डेटा लेके इंसर्ट कर रही है तो पोस्ट आता है, अगर अपडेट कर रही है थर्ड पार्टी से डेटा लेके एग्जिस्टिंग डेटा अपडेट कर रही है तो पुट आता है, अगर अपसर्ट ऑपरेशन कर रही है तो पैच आता है, और थर्ड पार्टी से लेके डिलीट कर डिलीट। तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज लाइक आई एम गोइंग टू टेक एग्जांपल, वन एग्जांपल एटलीस्ट, बट आई विल बी कवरिंग ऑल दिस मेथड्स, सारी मेथड्स में कवर करके दे दूंगा। दिस इज द मैक्सिमम somebody could taught about integration, दिस इज द मैक्सिमम somebody could taught about integration, आई एम टेलिंग यू दिस, ठीक है। इतना एक्चुअली कोई भी नहीं पढ़ाता, आई एम टेलिंग, बिकॉज मैंने आपको सिर्फ एक तो कंज्यूम करना पूरी तरह से सिखाया, टू एग्जांपल्स, साथ ही साथ प्रोवाइडर अगर मैं आपको बना रहा हूँ, इफ आई एम आस्किंग यू टू राइट डाउन द क्रिएट, आई मीन इफ आई एम आस्किंग यू टू क्रिएट द वेब सर्विसेज एज वेल, तो वेब सर्विसेज आर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, वेब सर्विसेज फॉर http get, web services like for insert method, web services for insert operation, that means http post, web services to update something, we will be creating something called as http put, and then web services for upserting, we are creating something called as http patch, and web service to delete some record from the Salesforce, for that we are going to write down we are going to create a web service for http delete as well. तो दैट इज द मैक्सिमम somebody could taught you, और ये मैं पूरा कवर करके दे दूंगा विथ वन एग्जांपल, ठीक है, विथ वन एग्जांपल, और इफ आई एम हैविंग द असाइनमेंट एज वेल सो मैं आपको वो भी देता हूँ, बट दिस इज द मैक्सिमम व्हाट वी कैन डू, दिस इज द मैक्सिमम व्हाट वी कैन अचीव विद द इंटीग्रेशन। तो यहाँ कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने लिटरली आपका, और OAuth ऑथेंटिकेशन विल बी द लास्ट थिंग, जो सबसे आखिरी में फिर मैं आपको आई विल बी टेलिंग यू व्हाट डज इट मींस बाय द OAuth as well, right? OAuth authentication, and for this you will be requiring postman,
For this you will be requiring postman. ठीक है, for this you will be requiring the postman, right? चलो, तो इसको मैं कल से स्टार्ट करता हूँ. कल से मैं पहला वेब सर्विस क्लास, राइट, I'll be showing you. फॉर मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल मैं शुरुआत में आपको सारे एग्जाम्पल वर्क बेंच से बताऊंगा, और एक एग्जाम्पल जो है, ये सारी क्लासेस बनाने के बाद एक एग्जाम्पल सबसे आखिरी में मैं आपको OAuth ऑथेंटिकेशन प्रोसेस बताऊंगा और एक एग्जाम्पल उससे कवर करके दे दूंगा. बाकी के एग्जाम्पल फिर जो है आपको वहाँ पे ये जो क्रिएट किया, जितनी भी क्लासेस क्रिएट की है ना, दैट यू रिक्वायर टू डू इट विथ दिस प्रोसेस, फिर आपको पोस्टमैन से करना पड़ेगा. समझा दूंगा मैं एक्चुअली क्या है ये. ठीक है, so that is what we are going to learn, and this with this we will be we will be going to end up your integration part. So after this I'm going to start with the deployment lectures. Chalo, first of all stop the recording.